So the question was, this is the system's difference equation. Okay, these are the initial values of output. If input is a unit step signal, we need to know the value. Okay, we need to know the value. So solving this type of discrete time systems problems, we can use the Z transformations, like the Laplace transformation we used for studying the continuous time systems. Z transformation is used to study the discrete time systems. Okay. Now, in this unit, we have completed the Z transformation. We know how to find out the forward and backward Z transformation. So, अगर हम इसका Z ट्रांसफॉर्म लें डिफरेंस इक्वेशन का, so what will be that? इसका Z ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे तो क्या बनेगा? YZ minus, it will be 3/4 y of n minus 1 यानी कि Z minus 1 YZ, ये इसका हो जाएगा अकॉर्डिंग टू शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, प्लस 1/8, इधर क्या आएगा Z raised to power minus 2 YZ. Okay, and what will be the XZ? XZ will be 1/1 minus Z minus 1. 1/1 minus Z minus 1. या इसको भी XZ ले लेते, XZ plus Z raised to power minus 1 XZ. This will be the Z transform form of this difference equation. इस difference equation को n डोमेन में ऐसे लिखेंगे तो Z डोमेन में ऐसे लिखेंगे. ओके, Z डोमेन में ऐसे लिखेंगे. Now what will be YZ? YZ क्या होगा? YZ will be, अगर XZ की वैल्यू लिख दे, what will be XZ? XZ will be Z of Z minus 1. ये तो XZ हो जाएगा, XZ का ये होता है, और Z minus 1 इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/Z minus 1. ओके, 1/Z minus 1. So YZ will be, अगर इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो YZ will come out to be equal to, मैं सीधा रिजल्ट लिख रहा हूँ, it will be Z square Z minus 1 divided by Z minus 1. Okay. और मैंने फैक्टर भी कर दिए, फैक्टर विल बी 1/1 minus 1/2. Okay, and Z of 1 minus 4. So in the simplified form, when you do the mathematics, simple mathematics, so you will get YZ to be this expression. Okay, this expression. अगर हमने इसमें XZ की वैल्यू डाल दी, XZ will be Z by Z minus 1, and इसको Z minus 1 को इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 आ जाएगा और ये आ जाएगा. So this will be the simplified YZ. So when you do the factors, you will get it to be 16/3 Z minus 1 minus 6 Z by sorry,
अगर इसको हम z ले लें, इसको z ले लें और यहाँ y बाय z कर दें, तो y बाय z की, क्योंकि जब हम पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं तो वी कैलकुलेट y z बाय z, so y z बाय z विल बी दिस 6 बाय 1 बाय 1 बाय 2 1 बाय 2 प्लस 5 बाय 3 divided by z minus 1 by 4. Okay. So this will be the partial fractions of this expression. yz by z. जब हम partial fraction से solve करते हैं z transformation, inverse z transformation निकालते हैं, तो we always find out the yz by z. yz by z से multiply कर देते हैं, so that कि z जब बाद में इसे multiply हो तो u वाली terms आ जाए, ठीक है, u वाली terms आ जाए, तो yz will be yz will be 16 by 3, इधर z से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको नॉन वैल्यूज, वो नॉन एक्सप्रेशन आ जाएगा जो हम un की फॉर्म में लिखते थे, एलिमेंट्री रिजल्ट ये आ गया ना, ये वाला z इससे मल्टीप्लाई होगा, ये जो नीचे z लिखा था ये यहाँ आ गया, ठीक है। इस वजह से जब भी हम पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं वी ऑलवेज फाइंड आउट yz by z, so इसे मल्टीप्लाई करते हैं, so that we get this type of result. ये आ जाएगा, and if yz is this will imply what will be yn? yn will be, इसका n डोमेन में कर देंगे ट्रांसफर, 16 by 3 और ये हो जाएगा un, z by z minus 1 is un, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था, un minus 6, the 1 by 2 raised to power n, 1 by 2 raised to power n un, and plus 5 by 3, और यहाँ पे 1 by 4 है तो 1 by 4 raised to power n un. Okay, so this will be your output in the n domain. This will be your output in the n domain. Okay. This is how the difference equation can be solved by using the z transformation. Okay. तो जब भी कभी हमको आउटपुट जो होता है वो निकालना होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ इनपुट, अगर इनपुट को कंसीडर करके आउटपुट निकालते हैं तो उसको हम कहते हैं फोर्स्ड रिस्पॉन्स. सो इट इज बेसिकली अ फोर्स्ड रिस्पॉन्स. ये क्या है? एक फोर्स्ड रिस्पॉन्स है. फोर्स्ड, इसको हम फोर्स्ड रिस्पॉन्स कहते हैं. फोर्स्ड रिस्पॉन्स, इट इज फोर्स्ड बाय it is the forced response which is forced by the presence of input. इनपुट की वजह से ये आपका आउटपुट आया, इसी वजह से इसे फोर्स्ड रिस्पॉन्स कहते हैं. अगर यही रिस्पॉन्स हम इन द एब्सेंस ऑफ इनपुट निकालें, इन द एब्सेंस ऑफ इनपुट मतलब इनपुट नहीं है, इनपुट को कंसीडर ना किया जाए, तो उसको हम कहते हैं नेचुरल रिस्पॉन्स.
इसको हम कहते हैं नेचुरल रिस्पॉन्स। ये हमने फर्स्ट ईयर में भी किया था, नेचुरल रिस्पॉन्स एंड फोर्स्ड रिस्पॉन्स, जब हमने सर्किट वाला पेपर पढ़ा था। उसके बाद हमने सिग्नल सिस्टम्स में किया था, फोर्स्ड रिस्पॉन्स और नेचुरल रिस्पॉन्स के बीच में डिफरेंस। और अब फिर दोबारा आपको बता रहे हैं कि फोर्स्ड रिस्पॉन्स इज व्हेन वी कंसीडर द प्रेजेंस ऑफ इनपुट को कंसीडर करते हैं, अदरवाइज अगर इनपुट एब्सेंट है तो सिस्टम में जो आउटपुट आ रहा है उसको हम नेचुरल रिस्पॉन्स कहते हैं। ठीक है, तो नेचुरल रिस्पॉन्स में व्हाट वी अज्यूम इज वी अज्यूम ऑल द एक्शन टू बी जीरो, ऑल द एक्शन टू बी जीरो। तो जब इसमें हम एक्शन की वैल्यू इस डिफरेंस इक्वेशन में जीरो रखेंगे तो हमारे को क्या मिलेगा, वी विल गेट yn minus 3/4 y of n minus 1 plus 1/8 y of n minus 2 to be equal to 0. ठीक है, to be equal to 0. And when we take z transform of both the sides using the initial conditions also, so we will get it to be yz minus 3/4 z of minus 1 yz plus y of minus 1, ये इनिशियल कंडीशन आ जाएगी इसमें, प्लस 1/8 इसमें। अब इसका कर रहे हैं हम z minus 2, जैसे इनिशियल कंडीशन उधर आती थी एस लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स में आती थी ना, z minus 1 y of minus 1 plus y of minus 2 equal to 0. Okay, so this will be the z transformation of this difference equation when we are finding out the natural response, that is when xn is 0. So इसमें जब हम yz की वैल्यू निकालेंगे, सारी इनिशियल कंडीशंस हमें पता ही हैं जो गिवन है हमें, ये इनिशियल कंडीशंस हमें गिवन है, ये इनिशियल कंडीशंस गिवन है, इनको सब्स्टिट्यूट करके yz की वैल्यू जब निकालेंगे तो हमारे पास ये आएगा 1/8, मैथ से आप कर लीजिएगा, 1/8 जेड स्क्वायर, ठीक है, 1/8 जेड स्क्वायर। चलिए आप इसको कीजिए, yz की वैल्यू निकालिए, मैं भी निकाल रहा हूँ। तो yz ये आएगा, अगर हम yz by z निकालेंगे एंड उसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, देन we will get it to be like this, 1/4 1 minus z minus 1/2 minus 1/8 z minus 1/4. So this will imply yn to be equal to, जब ये z यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास yn आ जाएगा 1/4 raised to power n un, 1/4 raised to power n un minus, sorry, ये आ जाएगा। So yn will be 1/4, ये 1/4 दिया और यहाँ पे 1/2 आ रहा है तो 1/2 raised to power n un, similarly 1/8 1 minus 1/8 and 1/4 यहाँ पर आ रहा है 1/4 raised to power n. So this will be your y. So this will be the natural response when we assume the input to be 0, input to be absent, and taking care of initial conditions, and this will be the system's forced response when input is a step function, input is a step signal, and we ignore the initial conditions. We ignore the initial condition, तो हमारे पास forced response आता है। तो किसी भी सिस्टम के दो तरीके के रिस्पॉन्स हो सकते हैं, एक नेचुरल रिस्पॉन्स इन द एब्सेंस ऑफ इनपुट और एक फोर्स्ड रिस्पॉन्स इन द प्रेजेंस ऑफ इनपुट। सो नेचुरल रिस्पॉन्स जो होता है वो उसके सिस्टम के इनिशियल कंडीशंस की वजह से आता है, इनिशियल कंडीशंस क्या है, और फोर्स्ड रिस्पॉन्स जो है वो इसके इनपुट की वजह से आता है।